तारापीठ, जिसे साधक मंदिर भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में द्वारका नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में माँ तारा की पूजा की जाती है, which is a form of Adi Shakti, the tantric manifestation of Parvati, and is worshipped for prosperity, good luck and wealth. इसे पूर्ण आध्यात्मिक शांति और चमत्कारों के साथ भारत के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक कहा जाता है। In my last vlog, we had shared our experience of Murshidabad and the tragedy of my leg fracture. दुर्घटना के कारण हमारी आगे की ट्रिप्स कैंसिल हो रही थी और हमने सोचा कि तारापीठ की यात्रा इस साल संभव नहीं होगी और इसलिए हमने ट्रेन टिकट कैंसिल कर दी। बचपन के दिनों में मुझे मेरे बड़ों ने बताया था that a simple chant of माँ तारा triggers the cosmic energies within you. And let me tell you, my friends, that the same energy helped me to strengthen my determination of visiting Tara Ma and experience the meaning of Shaktitva. आज 20 अक्टूबर 2022 है और we have hired a cab to experience the divinity of माँ तारा। मैं हुसैन और आप लोग चैनल देख रहे हैं फूडस्टेप्स के ब्लॉग्स। It's 7:30 and we have started from Behala. We are expecting to reach Bolpur by 11:30. हम ये जिस वक्त निकले हैं ये ऑफिस आवर है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रश है। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने। अभी हमें एक काम और करना है। आज मम्मी रांची से हावड़ा आने वाली हैं और मम्मी को हावड़ा स्टेशन से हमें पिक करना है। प्लान इज टू ड्राइव डाउन फ्रॉम कोलकाता टू शांति निकेतन। हमारा स्टे शांति निकेतन में है और हम शांति निकेतन से तारापीठ के लिए कल सुबह निकलने वाले हैं। Distance between Shantiniketan to Tarapeeth is approximately 64 kilometers, which takes approximately 1 hour 40-minute drive. While driving on National Highway 12 और दानकुनी पार करने के बाद हम लोगों ने एक टी ब्रेक लिया। We did not delay and started further towards our destination. दिस प्लेस इज कॉल्ड शक्तिगढ़ और यह जगह फेमस है एक तरह की मिठाई के लिए जिसे हम लैंगचा कहते हैं। इफ़ यू नोटिस, यहाँ हर एक शॉप इसी स्वीट के नाम पर है। द बेस्ट वे टू ट्रैवल डाउन टू तारापीठ इज वाया रेल। आपके पास हावड़ा और सियालदह स्टेशन से काफ़ी सारे ट्रेन्स के ऑप्शन हैं, which takes approximately 4 hours to reach रामपुर हाट। रामपुर हाट से आप एक ऑटो हायर कर सकते हैं तारापीठ के लिए। There are budget hotels available within a kilometer from the temple. However, I would recommend to book the hotels well in advance, especially during festival seasons due to heavy rush. साढ़े 12 बजे तक हम बोलपुर पहुंच गए and the essence of Bengal can be felt as you enter this ethnic place of Gurudev Rabindranath Tagore. जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा स्टे शांति निकेतन में है। We had booked Sonajuri Atithi Niwas located in midst of Sonajuri forest. The property has a rural touch with artistic impressions and greenery all around. They have different types of rooms available और आप इनको directly call करके booking कर सकते हैं and I have shared the details in the description box.
We had booked a 4-occupancy room, the window of which opened towards a lush green field. The food served is very simple and customized as per your requirement. आपको पहले से मील ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके ऑर्डर अनुसार फ्रेश खाना बनाकर खिलाते हैं. We had ordered for some authentic veg Bengali cuisine with chicken curry. After a homely served meal, हम लोग शांति निकेतन भ्रमण के लिए निकल पड़े. চাতক প্রায় নিশি যে আছে কালো চাতক প্রায় নিশি যে আছে কালো শোষী वैसे फ्रेंड्स, हम इस जगह पर लास्ट ईयर भी आ चुके थे और हमारे पिछले व्लॉग में हमने इस जगह को इलेबोरेट किया था, इसलिए इस बार इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे. We have shared the link of the last year visit to Shanti Niketan in the description box. By 5:30 हम लोग अपने होम स्टे में वापस आ गए and there was a surprise planned for us this evening. Asino Phaguno Mase सोनाझुरी हाट का ये सबसे बड़ा आकर्षण है. This form of dance is called Santhali dance and ये काफ़ी पॉपुलर है among tourists. शांति निकेतन में किसी की विजिट अधूरी मानी जाती है जब तक वो इस डांस को एक्सपीरियंस ना करें. लास्ट ईयर मैंने इस डांस को काफ़ी एंजॉय किया था. इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और हमें कल तारापीठ के लिए जल्दी निकलना है. गुड मॉर्निंग. आज 21 अक्टूबर है और हम तारापीठ के लिए निकल पड़े हैं. तारापीठ अघोरी तांत्रिकों, तंत्र साधकों और लाखों भक्तों का तीर्थ है. यहाँ लोग दुनिया के हर एक कोने से दर्शन करने आते हैं. इसकी रहस्यमय प्रकृति और स्थानीय विश्वास ने इस जगह को और अधिक भक्तों के लिए दिलचस्प बना दिया है. यह जगह व्यामाचरण चट्टोपाध्याय के लिए ज़्यादा फेमस है, जिन्हें हम बामाख्यापा या बामदेव के नाम से जानते हैं. बामदेव, who was main worshipper in Tarapith in the 19th century, having extraordinary power. Crossing down some beautiful fields and railway tracks, we finally reached Tarapith by 10:30.
हमने अपना प्लान ऑलरेडी हमारे पंडित जी श्री अभिजीत मुखर्जी को बता रखा था। He is a very humble and helpful person. I have shared his details in the description box. Since I was on plaster, he had made all arrangements. उन्होंने एक टोटो का अरेंजमेंट कर रखा था। The Toto moved through a narrow lane with small shops on both sides leading to the temple. हम लोग सबसे पहले अभिजीत बाबू की दुकान में गए, जहां उन्होंने मंदिर जाने के लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट कर रखा था। It is very difficult and it takes hours to have darshan in the temple. पर हमें डायरेक्टली मंदिर के अंदर प्रवेश मिला, जहां हम माँ के दर्शन कर मंत्रमुग्ध हो गए। हमें माँ तारा के पांव छूने का मौका भी मिला। ओरिजिनली यह एक पत्थर की मूर्ति है जिसके ऊपर चांदी का आवरण किया गया है। 11:15 बजे तक हम दर्शन करके दुकान में वापस आ गए। अभिजीत बाबू strongly recommended us to have भोग before leaving और उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर रखा था। भोग वितरण 12:30 बजे से शुरू होता है। यहाँ भोग में पुलाव, चावल, फिश, दाल, शुक्तो, आलू भाजा, सब्जी, स्वीट, चटनी और खीर चढ़ाया जाता है। भोग खाकर हम सभी तृप्त हो गए थे। मंदिर के ठीक बाहर यहाँ शमशान है, जहाँ 24 घंटे तंत्र, मंत्र और जाप चलता रहता है और ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तारापीठ आकर और माँ तारा के दर्शन पाकर हम बहुत खुश हो गए थे। वक्त हो चला था हमारे वापस लौटने का, इसलिए हमारे पंडित जी को धन्यवाद करते हुए हम शांति निकेतन की ओर बढ़ चले। आज का दिन काफ़ी टायरिंग था और होम स्टे वापस आते ही हम डिनर कर रूम पर चले गए। गुड मॉर्निंग। आज 22 अक्टूबर है और हम ब्रेकफास्ट के बाद शांति निकेतन से कोलकाता के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में हम कोंकाली तौला में रुके। कोंकाली तौला एक शक्तिपीठ है। हमारे लास्ट ईयर के व्लॉग में कोंकाली तौला का डिटेल में विवरण किया हुआ है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर रेफरेंस। माता के दर्शन के बाद हम कोपाई नदी की ठंडी हवा को अनुभव करते हुए कोलकाता की ओर बढ़ चले। करीब 1 घंटे में हम नेशनल हाईवे 12 में आ गए। इस हाईवे में आपको काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स और ढाबे मिल जाएंगे। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में करीब 2 बजे हमने लंच किया। We ordered for thali and it was pretty good. While returning to Kolkata, आप दक्षिणेश्वर जा सकते हैं वाया बाली और हम लोगों ने ड्राइवर के सजेशन अनुसार वैसा ही किया। दक्षिणेश्वर टेम्पल में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है और इसी कारण हम आपको यहाँ का ज़्यादा फुटेज नहीं दिखा पाए, बट माँ की कृपा से मुझे यहाँ भी अच्छे से दर्शन करने का मौका मिला। लगभग 8 बजे हम घर पहुँचे। आज हमारा 7 दिन का बंगाल टूर खत्म हुआ। वेस्ट बंगाल हमेशा से मेरे दिल के काफ़ी करीब रहा है,
न जाने कितने बचपन की यादें वापस आ जाती इस जगह। और हाँ, लेट मी टेल, हमारे 2022 बंगाल भ्रमण कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। आज 23 अक्टूबर है और हम आज कोलकाता से अपने घर रांची के लिए निकल रहे हैं। भरे मन से मौसी को अलविदा करके हम हावड़ा स्टेशन की ओर बढ़ चले। मौसी ने डिनर के लिए काफ़ी कुछ पैक करके दिया है और ट्रेन जर्नी में साथ में डिनर एंजॉय करने का आनंद ही कुछ और है। अभी सुबह के 5:20 हुए हैं एंड वी रीच्ड रांची बिफोर टाइम। और आज से हमारा नेक्स्ट 10 दिन का एक्साइटमेंट भरा फेस्टिव मूड स्टार्ट हो रहा है। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर वापस आएंगे हमारी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।